آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر ہم حاضر۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے سیز فائر معاہدے کی عدولیوں کے چلتے ایران نے آبنائے ہرموز کے کھولے جانے کو دیا خارج از امکان قرار۔ قوم کی بہتر تعمیر میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہنے کی طالب علموں سے لیفٹننٹ گورنر کی تاکید۔ جموں کشمیر کی موجودہ سرکار سبھی خطوں کی شمولیاتی ترقی کے لیے وعدہ بند، وزیر اعلیٰ کا JCCI کے وفد سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ اور چیف سیکرٹری کا 3440 کروڑ روپے کے سیلاب کے بعد کے بحالیاتی منصوبے کی تیز تر عمل آوری پر زور۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے فائر بندی معاہدے کی عدولیوں کے تناظر میں آبنائے ہرموز کو نہیں کھولا جا سکتا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ان عدولیوں میں امریکہ کی طرف سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بھی شامل ہے۔ دریں ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہے، البتہ معاہدوں کی عدولی اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے تناظر میں وزارت خارجہ کی جوائنٹ سیکرٹری اسیم مہاجن نے کہا ہے کہ خطے میں قائم بھارتی سفارت خانے دن رات کام کر رہے ہیں۔ بیان وزارتی میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ اس خطے میں رہ رہے بھارتیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج نگروٹا جموں میں سوامی پرناونندا ودیا مندر اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اساتذہ اور طالب علموں سے تلقین کی کہ وہ قوم کی بہتر تعمیر میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں LG نے کہا کہ اساتذہ اور طالب علم بھارت کو نالج اکانومی میں چوٹی کا ملک بنا سکتے ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہر ایک ودیارتھی سائنس اور سنسکار کا ملا جلا سوروپ بنے، یہ آج بھارت کی سب سے بڑی آوشکتا ہے۔ جیون میں آگے بڑھنے اور نئی اپلبدھیاں پراپت کرنے کے لیے اس سے زیادہ آوشک کچھ ہے نہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ راشٹریہ شکشا نیتی کے انترگت سجھائے گئے اپائے یہ سوابھاوک روپ سے بھارت کی گارنٹی کو پورا کرنے کی گارنٹی ہے۔ اس سے قبل لیفٹننٹ گورنر نے نگروٹا میں سرو شکتی چنڈی ماتا مندر پر حاضری دی۔ انہوں نے وہاں لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر کے سبھی خطوں کی متوازن اور جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج جموں میں کئی عوامی اور تجارتی وفود کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ارون گپتا کی سربراہی میں ایک وفد نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کے دوران دربار منہ کی روایت کو بحال کرنے کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی دانست میں لائے گئے عوامی مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ زبانیں نہ صرف خیالات کی ترسیل کا ذریعہ ہیں بلکہ ہماری تاریخ اور تہذیب کی شناخت بھی ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے جموں یونیورسٹی میں علاقائی زبانوں کے ساتھ اردو کا رشتہ کے موضوع پر منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کے دوران کیا۔ سیمینار کا انعقاد یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک سے کیا تھا۔ امور نوجوان اور کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے آج SKICC سری نگر کا دورہ کر کے وہاں منعقد ہونے والے چنتن شیور کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں اس نوعیت کے قومی پروگرام کا انعقاد جموں کشمیر کے لیے باعث افتخار ہے۔ چنتن شیور میں ملک کی سبھی ریاستوں اور UTs کے کھیل وزیروں اور دیگر ماہرین کی شرکت متوقع ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج رامبن ضلع کے بٹوٹ علاقے میں سٹی فارسٹ پارک کا افتتاح کیا۔ ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کی غرض سے قائم کی گئی یہ پارک 12 ہیکٹیئر زمین کے رقبے پر محیط ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ شہری علاقوں کے نزدیک جنگلاتی علاقے ماحولیات کے توازن کو برقرار رکھنے کے ساتھ سیاحتی سیکٹر کو مستحکم کرنے میں اہمیت کے حامل ہیں۔ اس موقع پر ممبران اسمبلی سجاد شاہین اور ارجن سنگھ راجو کے علاوہ محکمہ جنگلات کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے سال 2025 میں سیلاب اور اس طرح کی دوسری قدرتی آفات سے نقصان زدہ پروجیکٹوں کی مستقل بحالی کے کام کو وقت رہتے مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جموں میں متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے سیلاب کے بعد بحالیاتی کاموں کی غرض سے 3440 کروڑ روپے کے منصوبے پر عمل آوری کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری
पृथुल कुमार ने आज श्रीनगर में दूरदर्शन और आकाशवाणी श्रीनगर की कारगुजारी का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने दोनों इदारों के अफसरों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिनमें आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरविंदर सिंह, दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर सलमान काजी, डायरेक्टर न्यूज़ आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ दूरदर्शन शबीर डार, असिस्टेंट डायरेक्टर PIB सुनील कोल, दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SNH आबदी, आकाशवाणी के शोबे खबर में न्यूज़ एडिटर अशफाक शाह, आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून, दूरदर्शन के प्रोग्राम सरबराह तलहा जहांगीर रहमानी और दीगर अफसरान भी शामिल थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पृथुल कुमार ने दोनों इदारों की अवामी नशरियात की खिदमत को सराहते हुए वजारत की जानिब से फराख दिलाना ताउन का यकीन दिलाते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोनों इदारे अपनी नशरियात में मज़ीद निखार लाएंगे। कुदरती गैस और पेट्रोलियम की वजारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। वजारत ने वजाहत की है कि इस तरह की कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। इसी दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और मुल्क में ईंधन की पैदावार में 30% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नामानिगारों से बात करते हुए कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। हमारी सभी रिफाइनरीज पूर्ण कैपेसिटी पे चल रही हैं और हमारे पास जो प्री क्राइसिस पीरियड जितना स्टॉक होता था उतना या उससे ज्यादा स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। जहां तक LPG का संबंध है, LPG में भी हमारी डोमेस्टिक कस्टमर के लिए सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। नॉन डोमेस्टिक के केस में शुरू में करीब 20% का रिस्ट्रिक्शन रखा गया था, जो कि अभी बढ़ा के कुछ नियमों के साथ में भारत सरकार ने 70% का कर दिया गया है। ये 70% जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग कॉमर्शियल कस्टमर्स को भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला अहसन तरीके पर जारी है। वाज़ेह है कि इस साल श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाज़ें बराह रास्त सऊदी अरब के लिए उड़ान भर रही हैं। आज की एक परवाज़ में मज़ीद 142 आज़मीन किराम सफ़र महमूद पर रवाना हो गए। इस तरह से 18 अप्रैल से ताहाल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन की तादाद 2301 तक पहुँच गई है। सफ़र महमूद पर जाने के लिए आज़मीन किराम के ज़रूरी दस्तावेज़ पासपोर्ट के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। से हुजाज कराम इमिग्रेशन हो जाएगी इनकी मदीना एयरपोर्ट पे, तो पासपोर्ट लिया जाता है। तो पासपोर्ट उसके बाद मकतब के पास रहता है, जो वहाँ मौलिम है, मौलिम का ऑफिस मकतब उनके पास रहता है। जब इनकी मूवमेंट होती है मदीना से मक्का उस टाइम दिया जाता है, और जब वापसी होती है उस टाइम दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता वो स्मॉल ट्रांजिट में यानी इमिग्रेशन के बाद अभी उनके हैंड ओवर नहीं किया है, या मदीना से मक्का की मूवमेंट है या मक्का से जिद्दा की मूवमेंट है, उसके दौरान अगर खुदा न खास्ता पासपोर्ट रह जाए, गुम हो जाए, हो जाए, तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू की जाती है। आज किताबों और कॉपीराइट यानी हक की इशाअत का आलमी दिन है। आज के दिन किताबों और कुतुब बीनी की अहमियत के साथ साथ इंसानी अज़हान को एक इख्तराई सतह पर ले जाने में किताबों के रोल को उजागर किया जाता है। इसके साथ साथ किताबों के पुराने नमूनों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने की ज़रूरत को भी उजागर किया जाता है। इस दिन के हवाले से जब हमने पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक से बात की तो उन्होंने कहा, हम ये बैनुल अक़वामी दिन किताबों और कॉपीराइट के मामले में मना रहे हैं। हमें अपनी किताबों, हमारी तहजीब, अपने इल्मी और तहजीबी विरसे की हिफाजत करनी पड़ेगी। हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जिनकी तादाद हज़ारों में है, जो निजी कुतुब खानों और लाइब्रेरी में अब भी मौजूद हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो गया 2014 के सैलाब में, आज हमें ये एहसास ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है कि हमें फौरन अपने इस इल्मी, तहजीबी और अदबी विरसे को बचाना चाहिए। दरियासना लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की जानिब से इस दिन के मौके पर आज वादी में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। SPS सेंट्रल लाइब्रेरी कम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनक़दा प्रोग्राम में नादिर व नायाब किताबों और नुस्खों नीज़ मुसव्वरी के नमूनों की नुमाइश की गई। नुमाइश का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल लाइब्रेरीज रुबीना कौसर ने किया। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम से आज मीट द एमिनेंट राइटर प्रोग्राम के तहत मुमताज़ कश्मीरी शायरा और माहिर तालीम प्रोफेसर नसीम शफाई के साथ एक तारुफी नशस्त मुनक़िद हुई। नशस्त की सदारत मारूफ अदीब प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की। इस मौके पर आकाशवाणी श्रीनगर की साबिक प्रोग्राम सरबराह रुखसाना जबीन और अकेडमी के कश्मीरी शोबे के एडिटर जावेद इकबाल खान के अलावा दीगर कई शख्सियात मौजूद थीं। प्रोफेसर नसीम शफाई ने शुरका को अपने अदबी सफ़र के मुशाहिदात के बारे में बताया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
IGP कश्मीर VK बिरदी ने आज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की सदारत करते हुए आइंदा सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के साथ साथ तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने साथ ही शेषमाही दरबार मुँह के सिलसिले में भी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ समाज के बाज़ बुजुर्ग अफराद को मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल के अलावा एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का मसला भी दरपेश आता है। इस इस्तिलाह और मसले के बारे में बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एक ऐसी हालात है जब बड़े बच्चे घर से दूर चले जाते हैं पढ़ाई, नौकरी या शादी के बाद और बुजुर्ग वालिदैन को तन्हाई, उदासी और खालीपन महसूस होता है। इसकी अलामात में उदासी, बेचैनी, नींद की कमी, दिलचस्पी की कमी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कंट्रोल में ना रहना और बार बार बच्चों की याद आना शामिल है। इस हालात से निकलने के लिए अपनी रूटीन बनाइए, रोजाना वॉक करें, पुरानी हॉबीज दोबारा शुरू करें, दोस्त और रिश्तेदारों से राबता बरकरार रखें, बच्चों से रेगुलर बात करें, लेकिन अपनी जिंदगी को भी नया मकसद दें, जैसे सोशल एक्टिविटीज, इबादत या कम्युनिटी सर्विस। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतालिक खबरें। जम्मू कश्मीर को मनशात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं। इस हवाले से पेश है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। दरियासना IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा है कि नशे की लानत का मुकाबला करने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, स्कूल, कॉलेज और जो यंग जनरेशन है उसको फोकस में रख के किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो हम इस तरह का एनवायरनमेंट भी बनाएंगे ताकि अगर कोई किसी को किसी भी प्रकार की खबर है कि कोई इसमें जो बच्चों को ड्रग के जाल में फंसा रहा है तो उसकी खबर हमसे साझा करें, खासकर स्कूल, कॉलेज और यंग जनरेशन के लोग या उनके माँ बाप या समाज में बाकी जो इज्जतदार लोग हैं और उस पर हम कानूनी कार्रवाई करें। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सभी अजला में इंतजामिया और पुलिस के एहतमाम से मनशात मुखालिफ कार्रवाई और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। अवंतीपोरा में पुलिस के एहतमाम से कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिस दौरान शुरका को मनशात के इस्तेमाल के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी गई। अनंतनाग में कम्युनिटी की सतह पर जारी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर कई मसाजिद में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। पुलिस के इश्तराक से मुनक्किद इन प्रोग्राम में लोगों को मनशात की गैर कानूनी काश्त को तबाह करने के लिए कहा गया। बारामूला जिले के सोपोर में मनशात मुखालिफ मुहिम के तहत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। सोपोर पुलिस ने इस वबा पर काबू पाने के लिए 9596773144 की एक एंटी ड्रग हेल्पलाइन जारी की है। लोग इस नंबर पर मनशात से मुतल्लिक कोई भी इतला पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि इतला देने वाले की शिनाख्त को जाहिर नहीं किया जाएगा। इस दौरान SSP सोपोर इफ्तिखार खालिद की सदारत में आज नशा मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने शिरकत की। बारामूला जिले के बिजहामा उड़ी में भी आज मनशात मुखालिफ रैली निकाली गई। दरियासना गांदरबल जिले में भी पुलिस और जिला इंतजामिया के एहतमाम से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं। शुपियां जिले में पुलिस ने मनशात के खिलाफ कार्रवाई को वसी करते हुए नारकोटिक डॉग स्क्वाड को मुतहरिक किया है। पुलवामा जिले में भी आज कई मनशात मुखालिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। पुलिस ने अनंतनाग और सोपोर में 2 ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। जम्मू में J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के एहतमाम से आज नशा मुक्त मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद इस प्रोग्राम में 450 से ज़ायद नौजवानों और तालिब इल्म ने शिरकत करके नशे के खात्मे में अपना रोल अदा करने का हल्फ लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने पूरे जम्मू कश्मीर में कानूनी इमदाद की रसाई मजबूत करने की गर्ज से आज हाईकोर्ट कम्प्लेक्स जम्मू से जम्मू सूबे के दूर दराज इलाकों के लिए कसीरुल मकासद गाड़ियों के एक काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम लोगों को उनके नज़दीक ही इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम में गुज़श्ता बरस पेश आए इंसानियत सोज वाक़या कश्मीर के सियाहती शोबे के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। एक बयान में उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आम लोगों की आवाज़ को मौसर बनाने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक बुनियादी ज़रूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज बारामूला में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने नौजवानों की उमंगों को पूरा करने का सरकार से मुतालबा किया।
ین پہ میں کت بات ہند اخ سلسلہ شروع کور تن پہ گو میں احساس کہ نہ یہ مایوسی عام لکن مز یہ خالی نوجوان کی یمس نوجوانس دم گومت اس کت ہیکان کرت پن اندرم اس تمس وس اس تمس بے چینی تمیک ہیکان سہ اظہاری کرت اک طرف چھس بے روزگاری نال وولمت بے طرف چھس مصیبتن نال وولمت یہ سختی تہ روز نہ کی. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جماعتوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہمیشہ گمراہ کیا ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان 2026 کے تحت جموں میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ سے پارٹی کے پردیش صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما، جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور دیگر کئی لیڈروں نے خطاب کیا. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے ریلویز کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو سے سری نگر اور دلی کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس ریل سروس شروع کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کے لیے نہ صرف ایک ٹرانسپورٹ سروس ثابت ہوگی بلکہ وادی کے تجارتی منظرنامے کے لیے لائف لائن بھی بنے گی. جموں کشمیر میں چیری کی کاشت کرنے والے کسانوں کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے سال 2026 کے سیزن کے دوران ممبئی کے باندرا ٹرمینل تک چیری پہنچانے کے لیے 28 پارسل وینز کی کامیاب بکنگ حاصل کی ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر پارسل وین کی گنجائش 23 ٹن ہے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:50 اور غروب آفتاب شام 7:09 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.